Hello friends, welcome to the video lecture series on the subject building planning and drawing, and we are in the topic building by laws। और अब तक हमने इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज ये सभी चीजें डिटेल में देखी है। एंड इन द रिसेंट लेक्चर वी ऑल्सो अंडरस्टूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एरियाज, जहां पे बिल्टअप एरिया, एरिया ऑफ वॉल्स, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कॉमन एरिया, ये सभी एरिया स्टडी किए थे। एंड इन दिस लेक्चर विल बी कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक बिल्डिंग बाय लॉज, और इस टॉपिक में हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे। एंड देयर आर न्यूमरस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज फॉर दिस बिल्डिंग बाय लॉज, एंड वी विल स्प्लिट इट इनटू न्यूमरस लेक्चर्स, मतलब हम 2 या 3 लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट इन दिस लेक्चर विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड try to complete maximum content. With the first is building. First terminology, building. Any structure for whatsoever purpose and of whatsoever materials constructed and at every part of whether used for human habitation or other purpose is known as a building. The building consists of foundation, planes, wall, floors, roof, veranda, balcony, projections, chimney, plumbing and building services. Tents, cheminas and ट्रापांडिन शेल्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज बिल्डिंग्स। मतलब कोई स्ट्रक्चर वो किसी भी पर्पस के लिए क्यों ना बना हो या फिर कोई भी मटेरियल से भी क्यों ना बना हो, एंड एवरी पार्ट ऑफ वेदर यूज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन और एनी अदर पर्पस, मतलब वो इंसानों के रहने के लिए बना हो या फिर कोई और पर्पस के लिए ही बना हो, इसे बोलते हैं बिल्डिंग। सो सच स्ट्रक्चर्स आर नोन एज बिल्डिंग। Such buildings are consisting of foundation. See, these are the types of components of building. इसे components of building बोलते हैं, जो हमने recent lectures में study कर लिया है। And this is also included in construction technology. तो इसके components है foundation, plinth, walls, floors, roof, veranda, balcony, projections, chimneys, plumbing and building services। तो ये सभी components है हमारे building के। Then tent, shaminas and trampoline shelters are not considered as building। मतलब कोई भी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो कि कपड़े या प्लास्टिक से बने हैं उसको हम बिल्डिंग में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। इट इज नॉट कवर्ड अंडर द कवर्ड एरिया। फिर से एक बार बताता हूं, कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी पर्पस के लिए या फिर किसी भी मटेरियल से बना हो, इंसानों के रहने के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए ही क्यों ना बनाओ, इसे बोलते हैं बिल्डिंग। एंड दीज आर द कंपोनेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस स्ट्रक्चर। देन दिस सेकंड टर्मिनोलॉजी इज बिल्डिंग हाइट। In case of a flat roof, the vertical distance measured from the average level of the center line of the adjoining street to the highest point of the building is known as its height. In case of the pitched roof, the building height is vertical distance measured from the average level of the center line of the adjoining street to the point where the external surface of the outer wall intersects the finished surface of the sloping roof. In case of gable facing the road, it is vertical distance and measured from the average level of the center line of the adjoining street to the midpoint between the eaves level and the ridge. If the building does not abut on the street, the height shall be measured above the average level of the ground around and contiguous to the building if some architectural features which serve no other purpose except that of the decoration shall not be considered for the purpose of taking heights. So this becomes a bit lengthy in form of definition if we considered, but इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो बिल्डिंग हाइट क्या है। इन केस ऑफ फ्लैट रूफ द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द एवरेज लेवल, मतलब अगर हमारा रूफ फ्लैट है, हमारा सीलिंग फ्लैट है, तो वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द एवरेज लेवल ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द एडजॉइनिंग स्ट्रीट, मतलब एडजॉइनिंग स्ट्रीट जो रास्ता जा रहा है हमारे घर के पास से या फिर बिल्डिंग के पास से, उसकी एवरेज लेवल ऑफ द सेंटर लाइन, उसके सेंटर लाइन का जो लेवल है, हाइट है उसकी सेंटर लाइन की, दैट लेवल में बी कंसिडर्ड फ्रॉम द सी लेवल। वो लेवल ऑलरेडी दिया गया होता है बाय सिटी सिविल इंजीनियर्स ऑफ द एडजॉइनिंग स्ट्रीट। तो वहां से लेकर टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब हमारा बिल्डिंग का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके बीच की जो हाइट रहती है उसे बोलते हैं बिल्डिंग हाइट।
तो ये हो गया फॉर फ्लैट रूफ, ये हम फ्लैट रूफ की बात कर रहे थे। फिर से बता दूं वर्टिकल डिस्टेंस, किसका वर्टिकल डिस्टेंस, तो एवरेज लेवल ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द एडजॉइनिंग स्ट्रीट, मतलब हमारी जो स्ट्रीट जा रही है घर के पास से, उसकी सेंटर लाइन है, उसकी हाइट हमें कंसीडर करनी है रेफरेंस से, और वहां से लेकर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, तो इस हाइट को हम बोलते हैं बिल्डिंग हाइट। इन केस ऑफ द पिच्ड रूफ, बिल्डिंग हाइट इज वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द एवरेज लेवल, मतलब अगर हमारा रूफ पिच्ड है, स्लैंट है, the roof building height is vertical distance measured from the average level of the center line of the adjoining street, फिर से adjoining street के center line to the point where the external surface of the outer wall intersects, मतलब बाहर की जो वॉल है वो किसके साथ इंटरसेक्ट करेगी, the finished surface of the sloping roof, मतलब ये जो external wall है वो और फिनिश्ड सरफेस ऑफ द स्लोपिंग रूफ, मतलब जो पिच्ड है हमारी सरफेस उसके साथ कुछ स्लोप बना हुआ होगा तो उसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट से लेकर हमारी स्ट्रीट के मिड पॉइंट तक जो हाइट कंसीडर करते हैं उसे बोलते हैं बिल्डिंग हाइट। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन इज फॉर फ्लैट रूफ एंड अनदर इज फॉर पिच्ड रूफ, दिस बिकम्स पिच्ड रूफ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट व्हाट वी नीड टू नोट। तो इतनी चीजें बिल्डिंग हाइट में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे बिल्डिंग लाइन से। सो द लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग एडजॉइनिंग अ स्ट्रीट or an extension of a street or an future street may be lawfully extended is known as building line. The line refers to the line of the building frontage. Often this line is known as the setback or front building line. Generally the buildings are allowed to be constructed beyond the building line. But certain buildings such as cinemas, factories, commercial concerns which attract large number of vehicles should be set back a further distance apart from the building line. The line up to which such building can be constructed is known as a control line. This line is set further deep from the building line. The distance of control line from the center line of the adjoining street or the road may be about 1.5 times that of the building line. मतलब एक ऐसी लाइन जहां तक हमारी बिल्डिंग की प्लिंथ लाइन आती है, प्लिंथ आता है हमारे बिल्डिंग का, उस लाइन को अगर हम कंपेयर करें स्ट्रीट लाइन से तो हमारी बिल्डिंग का जो प्लिंथ है वो स्ट्रीट तक नहीं एक्सटेंड होगा. देयर इज अ स्पेसिफिक लाइन अप टू विच वी कैन कंट्रोल द प्लिंथ. तो जहां तक हम प्लिंथ कर सकते हैं, प्लिंथ बीम जहां तक कवर्ड एरिया में हम कर सकते हैं उसे बोलते हैं बिल्डिंग लाइन. इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं तो जहां तक हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उस बाउंड्री को हम बोल सकते हैं बिल्डिंग लाइन. द लाइन रिफर्स टू द बिल्डिंग ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग फ्रंटेज. तो इसे हम बिल्डिंग फ्रंटेज भी बोल सकते हैं या फिर लाइन ऑफ बिल्डिंग फ्रंटेज बोलते हैं. ऑफन दिस लाइन इज नोन एज द सेटबैक और फ्रंट बिल्डिंग लाइन. सेटबैक भी वो बोल सकते हैं बट इट इज अ एंटायरली डिफरेंट टर्म. हम ये डिटेल में देखेंगे. इट इज अ टर्मिनोलॉजी. फ्रंट बिल्डिंग लाइन भी बोल सकते हैं. सो इट इज हैविंग न्यूमरस टर्मिनोलॉजीज. जनरली द बिल्डिंग्स आर अलाउड टू कंस्ट्रक्टेड बियॉन्ड द बिल्डिंग लाइन. मतलब कई बार हमारा जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग लाइन से बढ़कर भी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. बट सर्टेन बिल्डिंग सच एज सिनेमाज, फैक्ट्रीज, कॉमर्शियल कंसर्न्स विच अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स. मतलब जो ऐसे बिल्डिंग्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स रहते हैं जैसे कि सिनेमाज, फैक्ट्रीज, कॉमर्शियल कंसर्न्स, तो इसमें बहुत ज्यादा व्हीकल्स पार्क होते हैं. तो इसीलिए They should be set back for further distance apart from the building line. मतलब यहाँ पे हमें और कम जगह मिलती है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बिल्डिंग लाइन और अंदर चली जाती है. The line up to which such buildings can be constructed is known as control line. तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हमें कंस्ट्रक्शन करना है सिर्फ कंट्रोल लाइन तक, बिल्डिंग लाइन तक भी नहीं जाना है. हम सिर्फ कंट्रोल लाइन तक ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. सो देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, कंट्रोल लाइन एंड बिल्डिंग लाइन्स. The distance of control line from the center of the adjoining street or road may be about 1.5 times that of the building line. मतलब यहाँ पे हम दो चीजें कंपेयर करेंगे, बिल्डिंग लाइन और सिनेमाज और वैसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स के लिए कंट्रोल लाइन. तो अगर हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करें, सो द
Control line from the center of the adjoining street of the road may be about 1.5 times that of the building line. मतलब कंट्रोल लाइन जो है वो 1.5 टाइम्स है बिल्डिंग लाइन की और अंदर चली जाती है 1.5 टाइम्स. मतलब अगर हम बिल्डिंग लाइन तक कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, और अगर हम कंट्रोल लाइन तक ही कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमें पार्किंग के लिए भी स्पेस मिल जाएगी ताकि ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स में जो ज्यादा व्हीकल है वो पार्क हो सके. एंड द डिफरेंस इज 1.5 टाइम्स, दोनों का डिफरेंस है. द डिस्टेंस ऑफ द लाइन्स ऑफ द बिल्डिंग फ्रंटेजेस इज डिसाइडेड बाय द कैटेगरी ऑफ द सिटी जोन इन विच द साइट ऑफ द प्रोपोज्ड बिल्डिंग इज लोकेटेड. मतलब ये सभी लाइंस जो है कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन, इसकी जो लिमिट्स है वो कौन सेट करता है? द कैटेगरी ऑफ द सिटी जोन. सिटी जोन मतलब हमारा जो एरिया है, सिटी टाउन कहां पे लोकेटेड है, द साइट ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग इज लोकेटेड. सो इट इज completely dependent on the area. Town planning authorities mark the present width and future likely widening of each street and the road. The minimum distance from the center line of the road is prescribed for the line of the building frontages. Sometimes there is a line to which generally all the buildings about this line is known as general building line. No building is allowed to be extended beyond this line. However, the rule of the general building line is released if the general line existing building is too deep or more than 15 meters from the roadways. The setbacks obtained by the building line proves helpful in these 4 ways which we will discuss later on. पर इससे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं. मतलब हमारी जो टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज वो प्रेजेंट विथ ऑफ द रोड, मतलब अभी जो हमारे रोड की प्रेजेंट विथ है वो मार्क कर देते हैं. एंड फ्यूचर में अगर हम वाइडनिंग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट अगर वाइडनिंग करने की सोच रहे हैं इन केस टू सॉल्व द ट्रैफिक इश्यूज, तो फ्यूचर लाइंस भी मार्क की जाती है. द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द लाइन ऑफ द बिल्डिंग फ्रंटेजेस. मतलब सेंटर लाइन ऑफ द रोड का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो भी प्रिस्क्राइब हम करते हैं लाइन ऑफ बिल्डिंग फ्रंटेज के रेफरेंस से. Sometimes there is a line to which generally all the buildings about this line is known as general building line. मतलब कई बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन खींची जाती है जिसके बाहर कोई भी बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए या फिर नहीं बनाया जाता, तो उस लाइन को हम बोलते हैं जनरल बिल्डिंग लाइन. ये कॉमन लाइन रहती है पूरी स्ट्रीट में. However, the rule of general building line is released if general line existing building is too deep or more than 15 meters from the roadways. The setback obtained by the building line proves helpful in, मतलब जो setback हम obtain करते हैं वो किस लिए helpful है? फ्यूचर वाइडनिंग ऑफ द रोड. अगर रोड को फ्यूचर में वाइड किया जाता है तो हमारी प्रॉपर्टी कट नहीं हो, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. देन रिड्यूसिंग नॉइस डस्ट फ्रॉम एबेटिंग बिल्डिंग, तो ये भी एक फायदा है. नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी नहीं पहुंच पाएगा हमारे बिल्डिंग तक, हमारी विंडो तक और हम तक, अगर हम ये रूल्स फॉलो करें. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ ब्लाइंडिंग कॉर्नर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रीट्स. मतलब कई बार ऐसा होता है कि इंटरसेक्शंस यानी कि रोड जंक्शंस जो रहते हैं वहां पे क्रॉस करते वक्त हमें दूसरी तरफ कुछ दिखाई नहीं देता ड्यू टू द एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन. बिल्डिंग लाइन के बाहर अगर हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो ट्रैफिक में प्रॉब्लम्स होंगे, वहां पे इंटरसेक्शन में कुछ दिखाई नहीं देगा एंड एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ ब्लाइंडिंग कॉर्नर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रीट्स. देन मेंटेनिंग ओपन स्पेसिस फॉर एयर, सन एटसेट्रा. मतलब ये वेंटिलेशन में भी काम आता है. अगर कुछ स्पेस हम खाली रखें और वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं करते तो इट वुड बी वेरी गुड वेंटिलेशन वेयर एयर एंड सनलाइट वुड बी परफेक्टली कंफर्टेबली एंड आइडियली अ ग्रेट सॉल्यूशन. फिर हमारा फोर्थ टर्मिनोलॉजी है परमिट, PERMIT, परमिट. A permission or authorization in writing by the authority to carry out the work regulated by code is known as permit. तो मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें उसकी परमिशन लेनी जरूरी है. तो अगर हम परमिट लिए बिना काम करते हैं तो कभी भी कॉरपोरेशन या फिर गवर्निंग अथॉरिटी उसको
तोड़ सकते हैं। सो परमिशन यानी कि ये ऑथराइजेशन हमें राइटिंग में लेने हैं फ्रॉम द अथॉरिटी टू कैरी आउट वर्क रेगुलेटेड बाय कोड। मतलब ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार अगर हम चाहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन हो पाए तो रिटर्न में हमें ये परमिशन यानी कि परमिट लेनी है। सो दिस वाज आवर फोर्थ टर्मिनोलॉजी एंड द फिफ्थ इज सेटबैक लाइन। A setback line is a line usually parallel to the plot boundaries and laid down in each case by the authority beyond which nothing can be constructed towards the site boundaries. Which means that these are the lines which are parallel to plot boundaries. हमारे प्लॉट की जो बाउंड्रीज है उसके पैरेलल प्लॉट के बाहर कुछ लाइन ड्रॉ की जाती है जिसे बोलते हैं सेटबैक लाइन। नाउ इसका काम क्या रहता है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेटबैक लाइन? So these are laid down in each case by authority beyond which nothing can be constructed. तो ये लाइन के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता towards the site boundaries. Which means if this is our plot area, ये हमारा प्लॉट का एरिया है, तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे as per the specification laid out by the authorities, अंदर की तरफ यहाँ पे कुछ सेटबैक लाइन ड्रॉ की जाती है। मतलब यहां से इतना कुछ डिस्टेंस हमें छोड़ देना पड़ता है। बियॉन्ड विच नो कंस्ट्रक्शन कैन बी कैरिड आउट। सो दिस डॉटेड लाइन इज नोन एज सेटबैक लाइन। देन अवर सिक्स्थ टर्मिनोलॉजी इज सर्विस रोड। इट इज अ रोड और अ लेन प्रोवाइडेड एट द रेयर और साइड ऑफ अ प्लॉट। इट इज यूज मोस्टली फॉर द सर्विस पर्पसेस। मतलब ये जो रोड है जिसे बोलते हैं सर्विस रोड, प्रोवाइडेड एट द रेयर और साइड ऑफ द प्लॉट। मतलब यह साइड में एक ले किया जाता है नियर अवर प्लॉट्स। इट इज यूज मोस्टली फॉर सर्विस पर्पस। मतलब कोई भी अगर हमें सर्विस चाहिए, मैन होल्स, ड्रेनेज वगैरह कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, तो उस सर्विस के लिए कुछ रास्ता छोड़ दिया जाता है जिसे बोलते हैं सर्विस रोड, और इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विसिंग रोड। Then our seventh terminology is street line. It is the line defining the side limits of a street. मतलब हमारी जो स्ट्रीट है उसकी बाउंड्रीज मार्क की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रीट लाइन। मतलब ये स्ट्रीट लाइन की बाउंड्री बन गई। Then what is a street? It is a highway, street, lane, pathway, carriageway, footway of public हैज द राइट टू एक्सेस। मतलब ये ऐसी सड़कें हैं जहां पे पब्लिक को राइट है इसको एक्सेस करने की, जिसमें हाईवे भी आ जाता है, लेन, पाथवे, कैरेज वे, फुटवे। मतलब ये सभी चीजें जो एक्सेस के लिए इस्तेमाल की जाती है वो स्ट्रीट में इंक्लूड हो जाती है। देन अवर नाइन्थ टर्मिनोलॉजी इज सैंक्शन्ड प्लान। It is a set of drawings, plans and specifications submitted under the code and duly approved and sanctioned by the authorities. मतलब ये sanctioned plan कुछ drawings रहते हैं, plans रहते हैं जो कि specifications के अनुसार गवर्नमेंट अथॉरिटीज द्वारा अप्रूव किए गए हैं। After this sanctioned plan is approved, we can start the construction work. मतलब ये एक बार हमारे पास प्लान sanctioned हो गया उसके बाद ही हम construction work कैरी कर सकते हैं। So this was our ninth terminology, and the 10th is street level or grade. It is the officially established elevation or grade of the center line of the street upon which the plot fronts. If there is no official established grade, the existing grade of the street at its midpoint is taken as the street level or grade level. तो नाम से ही सबसे पहले तो हम समझ चुके होंगे कि स्ट्रीट लेवल मतलब स्ट्रीट का एलिवेशन, स्ट्रीट की लेवल ग्रेड की बात कर रहे हैं हम। इट इज द ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड एलिवेशन और ग्रेड ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द स्ट्रीट। मतलब स्ट्रीट की जो सेंटर लाइन है, सेंटर से जो पास हो रही है स्ट्रीट की, उसके एलिवेशन की हम बात कर रहे हैं। विच डिपेंड्स अपॉन विच द प्लॉट फ्रंट्स। इफ देयर इज नो ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड ग्रेड, मतलब अगर कोई ग्रेड एस्टेब्लिश नहीं किया गया, मार्क नहीं किया गया, द एग्जिस्टिंग ग्रेड ऑफ द स्ट्रीट एट इट्स मिड पॉइंट इज टेकन एज द स्ट्रीट लेवल और ग्रेड लेवल। मतलब अगर हमारी स्ट्रीट का हम लेवल जानना चाहते हैं, दिया नहीं गया, तो हम उसकी सेंटर लाइन से पास होता हुआ, कोई सेंट्रोइड से पास होता हुआ कोई भी पॉइंट का एलिवेशन हम मार्क करके उसको स्ट्रीट लेवल बता सकते हैं। देन 11th टर्म इज रूम हाइट।
The vertical distance measured from the finished floor surface to the finished ceiling surface is known as room height. मतलब हमारे कंस्ट्रक्शन में रेसिडेंशियल और कमर्शियल में रूम हाइट की बहुत डिफरेंस रहता है. तो उसके लिए अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे घर की रूम हाइट, परफेक्ट रूम हाइट क्या है, देन दैट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज मेजर्ड फ्रॉम फिनिश्ड फ्लोर सरफेस. मतलब फ्लोरिंग के जो हम टॉप लेयर होता है उसको कंप्लीटली फिनिश करके वहां से हम स्टार्ट करते हैं टू द फिनिश्ड सीलिंग सरफेस. तो सीलिंग में भी अगर हम पीओपी, जिप्सम सीलिंग, कलर, प्लास्टर जो कुछ भी लगाया है तो उसके जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां तक, ये दोनों के भी फ्लोरिंग के टॉप लेयर से सीलिंग के बॉटम लेयर तक जो डिफरेंस आता है वर्टिकल हाइट में, दैट इज रूम हाइट. Then our 12th terminology is covered area. The area covered by the building immediately above the plinth level, that is ground floor, is known as covered area. मतलब जितना भी एरिया हमारे बिल्डिंग के इमीडिएटली अबव प्लिंथ लेवल पे है, दैट इज ग्राउंड फ्लोर पे है, उसे बोलते हैं कवर्ड एरिया. तो अगर ये प्लिंथ एरिया है तो उसके ऊपर जितना भी एरिया कवर होता है, दैट इज कवर्ड, दैट कवर्ड एरिया इज नोन एज कवर्ड एरिया. Then our 13th terminology is छज्जा. It is sloping or horizontal structural overhang which is usually provided above opening to protect from sun and rain. मतलब ये एक स्लोप में या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर प्रोवाइड किया जाता है, विच इज यूजुअली प्रोवाइडेड अबव ओपनिंग. मतलब ये डोर या विंडो ओपनिंग के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, वेंटिलेशन के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, और इसका पर्पस है टू प्रोटेक्ट सन एंड रेन, प्रोटेक्ट फ्रॉम सन एंड रेन से बचने के लिए. एंड वी हैव सीन न्यूमरस दिस टर्मिनोलॉजी इन components of building. Then 14th terminology is balcony. It is horizontal projection which is used to serve a passage or sitting out place. मतलब ये सिर्फ एक horizontal projection है जो कि हमारे जो कॉलम से उसके बाहर आ रहा है, which is used to serve a passage or sitting out place. मतलब बालकनी के यूज तो आप जानते ही हो, सिर्फ बैठने के लिए, या फिर कई लोग तो इसमें रूम भी बना देते हैं. पर रूम बनाने से ये कवर्ड एरिया जो बाहर से प्रोजेक्शन निकल रहा है उसे हम बालकनी नहीं बोल सकते. बट वी कैन कवर दिस बालकनी, कन्वर्ट दिस बालकनी इनटू रूम. बेसमेंट और सेलर. द लोअर स्टोरी ऑफ अ बिल्डिंग विच इज बिलो और पार्टली बिलो द ग्राउंड लेवल इज नोन एज बेसमेंट. मतलब नीचे का जो फ्लोर रहता है हमारे बिल्डिंग में, विच इज बिलो और पार्टली बिलो द ग्राउंड लेवल. तो अगर हमें ग्राउंड लेवल मालूम है तो उसके नीचे का जो लेवल रहता है वहां पे अगर कोई भी रूम प्रोवाइड करते हैं तो वो बेसमेंट या फिर सेलर बोलते हैं उसे. Then our 16th terminology is detached building. It is a building whose walls and roofs are independent of any other building. It has open spaces on all the sides. मतलब ये एक ऐसा बिल्डिंग है जिसका रूफ और वॉल्स इंडिपेंडेंट है फ्रॉम अदर बिल्डिंग. मतलब कोई भी बिल्डिंग का या फिर कोई भी हाउस का स्ट्रक्चर का इसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है. इट हैज ओपन स्पेसिस ऑन ऑल द साइड्स. मतलब ये सिर्फ आइसोलेटेड बिल्डिंग रहता है, अकेला बिल्डिंग रहता है जहां पे आजू बाजू में कोई उसको छू करके बिल्डिंग नहीं है. देन सेमी डिटैच्ड बिल्डिंग. A building detached on the three sides with specified open spaces is known as semi-detached building. मतलब similarly as we saw in the detached building, semi-detached building में भी isolated building रहता है पर ये कोई एक तरफ से सपोर्ट इसे मिल रहा है, और 3 sides with specified open spaces, 3 साइड इसकी फ्री रहती है. लाइक डिटैच्ड बिल्डिंग. डिटैच्ड बिल्डिंग में चारों साइड इसकी फ्री रहती है, और सेमी डिटैच्ड बिल्डिंग में सिर्फ 3 साइड फ्री रहती है. Then we'll talk about 18th terminology is drain. It is pipeline meant for the drainage of the building or a number of buildings. मतलब एक या फिर नंबर ऑफ बिल्डिंग में से पाइपलाइन पास होती है जो कि वेस्ट वाटर, जो कि बाथरूम, टॉयलेट, वॉशरूम्स, वॉश एरियाज में से पास होती है टू कलेक्ट द डर्टी वाटर और वेस्ट वाटर, उसे बोलते हैं ड्रेन. So this becomes the 18th terminology and the 19th is given over here, exit. तो आप लोगों ने बहुत जगह पे ये पढ़ा होगा, मॉल्स में
सिनेमाज में एग्जिट. इट इज अ मीन्स ऑफ egress from any building, stories or floor area to a street or an open space. It may be in the form of passage or channel. मतलब ऐसी जगह पे बिल्डिंग्स में, स्टोरीज जहां पे मैंने बताया सिनेमाज में, एक कुछ पैसेज या फिर चैनल दी जाती है एग्जिट के लिए. मतलब एंट्री के लिए अलग रहता है और एग्जिट के लिए अलग चैनल प्रोवाइड की जाती है, पैसेज प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम बिल्डिंग से बाहर, स्ट्रक्चर से बाहर निकल सके. दैट इज नोन एज एग्जिट. Then 20th terminology is plinth area. It is a built-up covered area measured at the floor level of the basement or of any story. तो ये हमने बिल्डिंग कंपोनेंट्स में भी देखा था. ये एक built-up और covered area रहता है, measured at the floor level. फ्लोर लेवल पे built-up और covered area रहता है of basement of any story. तो कोई भी बिल्डिंग में बेसमेंट की बात करें हम, उसके फ्लोर लेवल के ऊपर जो बिल्टअप कवर्ड एरिया है उसे हम प्लिंथ एरिया बोलते हैं. देन आफ्टर वी हैव 21th terminology, plinth. The portion of the structure lying between the surface of the surrounding ground and the surface of the floor immediately above the ground is known as plinth. मतलब देखो यहां पे हम दो चीजें डिवाइड कर रहे हैं. पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर लाइंग बिटवीन द surface of the surrounding ground and surface of the floor immediately above the ground. तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसे हम प्लिंथ बोलते हैं. एंड इट इज वेरी कॉमन टर्म. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस इन कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग. देन 22nd term is open space. It is an area forming an integral part of the plot left open to sky is known as open space. मतलब हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे प्लॉट में कुछ ऐसा एरिया हम छोड़ देते हैं जहां पे ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता और डायरेक्टली स्काई दिखाया जाता है. तो इसे हम ओपन स्पेस भी बोल सकते हैं और OTS यानी कि ओपन टू स्काई भी बोल सकते हैं. दैट इज फॉर्मिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट. ये वेंटिलेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है और इसके बहुत से पर्पस रहते हैं. देन अवर लास्ट टर्मिनोलॉजी फॉर टुडे, आज के लिए लास्ट टर्मिनोलॉजी है ये फ्लोर एरिया. इट इज द यूजेबल कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग एट एनी फ्लोर लेवल. तो अगर हम किसी भी फ्लोर की बात करते हैं, उसका बॉटम का जो यूजेबल कवर्ड एरिया है, कवर किया गया है और यूजेबल है, इसमें बालकनी नहीं आएगी, इसे बोलते हैं फ्लोर एरिया. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.